ملتان کے لنڈا بازار میں آتشزدگی کے باعث 40 سے زائد دکانیں جل گئی، لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ رائبند کے قریب ملتان روڈ پر واقع کپڑے کی فیکٹری میں آتشزدگی کے باعث 17 سالہ نوجوان جھلس کر جاں بحق ہو گیا، 3 زخمی، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ گجرانوالہ میں تیز رفتار بس نے رکشے کو ٹکر دے ماری، حادثے کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 5 مسافر زخمی۔ ملک میں پے در پہ دہشت گردی کے واقعات، چیچا وطنی میں انتظامیہ کو ہوش نہ آیا، مختلف بازاروں میں نصب کیے گئے سی سی ٹی وی کیمرے ناکارہ ہو گئے، شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ خانیوال کے سکولز میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے فرضی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا۔ حاصل پور میں پولیس چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی، 2 روز میں شہری قیمتی اشیاء سے محروم، پولیس نے ناکامی پر اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ گجرانوالہ کے نجی تعلیمی ادارے میں سالانہ سپورٹس گالا کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، طالبات نے خوب ہلا گلا کیا اور خوبصورت انداز میں ملکی ثقافت کو بھی اجاگر کیا۔ رویتے ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کا سیون شریف کا دورہ، کہتے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں داعش کے ساتھ بھارت بھی ملوث ہے، حکومت دہشت گردوں کے نیٹ ورک کا کھوج لگائے۔ حیدرآباد میں ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، عدالتوں کے باہر رینجرز اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ کند کوٹ، سیول اور سیشن کورٹ کے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لورالائی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، زیر تعمیر یونیورسٹی کے قریب 3 مختلف مقامات پر نصب شدہ 60 کلو بارودی مواد ناکارہ بنا دیا گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، اے ایس آئی شدید زخمی، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مانسہرہ ایلیٹ فورس کی جانب سے ڈسٹرکٹ کورٹ اور ڈی سی آفس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موک ایکسرسائز کی گئی، افسران نے بھی شرکت کی۔ راولا کوٹ میں کمانڈر سی ایم ایچ بریگیڈیئر وسیم احمد کی پریس بریفنگ، کہتے ہیں سول اور ملٹری جوائنٹ ونگ سے عوامی خدمات انجام دے رہے ہیں، شیخ زید النیان اسپتال میں صحت کی جدید ترین سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ ملتان کے لنڈا بازار میں آتشزدگی کے باعث کئی دکانیں جل گئیں، لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ملتان کے علاقے حسین آگاہی میں لنڈا بازار میں لگنے والی آگ نے متعدد دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کپڑے کی ایک دکان میں لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے پھیلی اور دیگر کئی دکانیں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہوئیں اور ان میں رکھا گیا سامان بھی تباہ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف رہیں۔ دکانداروں کے مطابق آگ سے تباہ ہونے والی مارکیٹوں میں لاکھوں کا سامان رکھا ہوا تھا جو چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کے تاخیر کے آنے کی وجہ سے دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ادھر رائبند کے قریب ملتان روڈ پر واقع کپڑے کی فیکٹری میں آتشزدگی کے باعث 17 سالہ نوجوان جل کر جاں بحق ہو گیا۔ شارٹ سرکٹ کے باعث کپڑے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں 1 ورکر جاں بحق جبکہ 3 بری طرح جھلس گئے۔ آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا جس نے 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا، تاہم آتشزدگی کے نتیجے میں لاکھوں روپے کا کارٹن جل کر خاکستر ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ضروری کارروائی کرتے ہوئے فیکٹری مالک سمیت 3 افراد کے بیانات کے لیے شامل تفتیش کر لیا ہے۔ صادق آباد کے لنڈا بازار میں لگنے والی آگ نے سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔ متاثرہ امداد علی کے گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ متاثرہ خاندان نے لنڈا بازار میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کروانے اور متاثرین کی مالی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔
कारबल सादिकाबाद के लंडा बाजार में रात गए अचानक आग लग गई। आतिशज़दगी से बाजार और उसके अतराफ में 400 से ज्यादा दुकानें और पथारे जल गए थे, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर राख का ढेर बन गया। कई घरों का गुजर बसर इन पथारों पर था। इन्हीं में से एक इमदाद अली का घराना भी है। इमदाद अली कहता है कि कर्जा लेकर सब कारोबार शुरू किया था, आग लगी और सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। नौबत अब फाकों तक पहुंच गई, मगर हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई मदद नहीं की गई। हुकूमत बाला नूं अपील करते हैं कि खुदारा है साड़ी हालत ज़ात देखी जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चों की हालत देखी जाए कि असी फाका कशीदा आलम हो। इमदाद अली के बच्चों का कहना है कि जब से लंडा बाजार में आग लगी है, घर में खाने को कुछ नहीं है। अब उन्हें स्कूल जाने से भी रोक दिया है। दुकान जल गई है, हम स्कूल उस दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे पास फीस अदा करने के पैसे नहीं है, हम उस दिन से भूखे हैं, खाना खाने के पैसे भी नहीं। लंडा बाजार में लगने वाली आग से मुतादिद घराने मुतासिर हुए, घरों में फाके हैं। मुतासिरा खानदानों ने हुकूमत से वाक़े की तहकीकात कराने और माली इमदाद देने का मुतालबा किया है। खबर है गुजरांवाला से, जहां पर तेज रफ्तार बस ने चांदगाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। गुजरांवाला के इलाके मानावाला के करीब तेज रफ्तार बस ने चांदगाड़ी को टक्कर दे मारी। हादसे में चांदगाड़ी में सवार खातून समेत 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। चीचावती में सिक्योरिटी इंतजामात के तहत लगाए गए अक्सर सीसीटीवी कैमरे नाकारा हो गए। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीचावतनी का शुमार पंजाब के हसास शहरों में होता है, जहां लूटमार और डकैती की मुत्तादिद बड़ी वारदातें रूनुमा हो चुकी हैं। कुछ अर्सा कबल सिक्योरिटी इंतजामात के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मेन गेट और मुख्तलिफ बाजारों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए थे, जिनका मकसद मशकूक अफराद की नकलो हरकत को मॉनिटर करना था। ताहम चंद माह बाद ही इंतजामिया की बेहिसी के बाइस बेशतर कैमरे नाकारा हो गए। इलावा अजीम बाज़ मकामात पर कैमरों के सामने मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने तशहीरी बोर्ड नस्ब कर रखे हैं, जिससे कैमरों की तनसीब का मकसद ही खत्म हो गया है। सीसीटीवी कैमरों के मामले पर गफलत बरतने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार भी किया है। खानेवाल के स्कूलों में हंगामी सूरत हाल से निपटने और मुत्तल्लिका इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए फर्जी मशकों का आगाज कर दिया गया। इन फर्जी मशकों में पुलिस, हसास इदारों, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, वापडा और रेस्क्यू 1112 समेत दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। खानेवाल के पब्लिक स्कूल में हंगामी सूरत हाल की 15 पर इत्तला दी गई, जिसके बाद तमाम इदारे चंद लम्हों में स्कूल में पहुंच गए और अपना अपना काम किया। रेस्क्यू 1112 ने इन फर्जी मशकों के दौरान जख्मी होने वाले अफराद को बरवक्त इमदाद फराहम करने के साथ साथ अस्पताल मुंतकिल किया। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि स्कूल में इन फर्जी मशकों का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निमटना है। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से 4 सद्दा खुदकुश धमाकों की मजम्मत करते हुए आज हड़ताल हो गई। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार ने 4 सद्दा खुदकुश हमलों की सोग में हड़ताल करते हुए अदालतों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया। इस दौरान कोई भी वकील अदालतों में पेश न हुआ, जिसके बाद साइलिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार, सेक्रेटरी बार और दीगर ने 4 सद्दा धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़ियां पर इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बार के वकला शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। नाज़रीन, अभी गर्मी खत्म नहीं हुई। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को अभी से परेशान कर दिया है। मैप को हुकाम गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह बताने को भी तैयार नहीं है, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला गर्मी आने से कबल ही शुरू हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन से। एजाज तरीन, आगाह कीजिएगा, कितना दौरानिया है लोड शेडिंग का मुल्तान में? मुल्तान में अभी से जो है गर्मी अभी शुरू नहीं हुई कि तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। शहरी बड़े परेशान है। मैं आपको ये बता दूं कि सुबह के वक्त जब बच्चों ने स्कूल और कॉलेज जाना होता है और लोग अपनी ड्यूटियों पर जाते हैं, तो उस वक्त कई घंटे तक सुबह लोड शेडिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे जो है घरेलू मामलात में जो है वो मुतासिर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मुल्तान के नवाग की, तो वहां पर कई
घंटे जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि मुरम्मत के नाम पर भी आए रोज जो है लोड शेडिंग कर दी जाती है। मुरम्मत के नाम पर भी आए रोज लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एजाज तरीन, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। हासुलपुर में पुलिस चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, जबकि अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। हासिलपुर में जुराइम पेशा अफराद बेलगाम हो गए। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं। गुज़िश्ता शब चोर मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा के घर से ताले तोड़कर 3 अदद मोटरसाइकिलें ले उड़े। एक शहरी से असलहे की नोक पर मोटरसाइकिल छीनी गई। इसी तरह चोर एक और शहरी के घर से भी 1 अदद मोटरसाइकिल, यूपीएस और किचन का ओवन ले उड़े। इस इलाके में मुतअद्दिद वारदातें हुई, जिन पर शहरी सरापाए एहतजाज हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और IG से मुतालबा किया है कि नाअहल पुलिस अफसरान को फौरी मुअत्तल किया जाए और जुराइम की रोज बरोज बढ़ती हुई शरह पर काबू पाया जाए, क्योंकि अवाम के जानो माल का तहफ्फुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। नारोवाल में VIP प्रोटोकॉल न मिलने पर वकील आपे से बाहर हो गया। साथ ही वकला के हमरा पासपोर्ट ऑफिस में हंगामा आराई और अमले को तशद्दुद का निशाना बना दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज अदनान नामी वकील पासपोर्ट बनवाने के लिए आया और VIP प्रोटोकॉल मांगते हुए सबसे पहले पासपोर्ट बनाने पर इस्तार किया। VIP प्रोटोकॉल न मिलने पर वो आज 12 साथी वकीलों के हमरा पासपोर्ट ऑफिस में दाखिल हुआ और तशद्दुद का निशाना बना दिया। इलावा अजी दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर्स और दीगर सामान भी तोड़ दिया। वाक़े की इत्तला पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि नारोवाल पासपोर्ट ऑफिस में सिक्योरिटी के पेश नज़र ताहाल CCTV कैमरे नस्ब नहीं किए जा सके, जबकि मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं। शाहजियूना में पुलिस ने दरबार से मुल्हिका अराजी पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। शाहजियूना में लालिया रोड पर वाक़े दरबार शाहजियूना करोड़ पर मुल्हिका अराजी पर बासर अफराद ने कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने जमीन पर न सिर्फ हल चलाया बल्कि कच्ची आबादी को खाली कराने की धमकी भी दी। अहले इलाका की शिकायत पर DSP सदर सर्कल मोहम्मद ताहिर खिचरी ने भारी नफरी के हमरा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिमान के ट्रैक्टर कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए। डेरा गाजी खान जिला काउंसिल का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने सरकारी महकमों के खिलाफ शिकायत के अनबात लगा दिए। डेरा गाजी खान जिला काउंसिल का पहला इजलास ज़रई चेयरमैन सरदार अब्दुल कादिर खोसा की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने शिरकत की। इस मौके पर कई चेयरमैन ने शिकायत की कि उनके पास ना तो दफातर हैं और ना ही फर्नीचर। वो चुटाइयों पर बैठकर यूनियन काउंसिल के इजलास कर रहे हैं। औलिया के शहर मुल्तान का कैंटोनमेंट एरिया गार्डन ऑफ यूरोप बन गया, क्योंकि हॉलैंड की पहचान गुलाला अब मुल्तान की शान बढ़ा रहा है। मुल्तान के कैंट एरिया में कुदरत के हसीन रंगों से मुज़य्यन फूलों की आबियारी के खुसूसी एहतमाम जारी है। इन दिनों बड़े पैमाने पर गुले लाला यानी ट्यूलिप के पौधों की अफजाइश की गई। ISPR के मुताबिक रवां साल मुख्तलिफ 13 इकसाम के 1 लाख से जायद पौधे बरादर इस्लामी ममालिक तुर्की से दरामद किए गए। चमनजार अस्करी झील से मुल्हिका जगह पर लगाए गए ये पौधे इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। गुले लाला के फूलों को अफजाइश के लिए 15 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत की मुसलसल जरूरत रहती है। शहरियों की कसीर तादाद रोजाना गुले लाला की रानाइयां देखने के लिए चमनजार अस्करी आ रही है। उनका कहना है कि कठिन ज़दा माहौल में हर तरफ फूल खिले देखकर तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। साहिवाल में मादरी जबानों के आलमी दिन के हवाले से माँ बोली दिहाड़ के नाम से रैली निकाली गई। शुरका ने इलाकाई रक्स भी पेश किया। साहिवाल में मादरी जुबानों के आलमी दिन के सिलसिले में लोग सो जाग और मकामी तंजीम के ज़रिए एहतमाम माँ बोली दिहाड़ रैली निकाली गई। रैली सदर चौक से शुरू हुई, जो मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर माँ बोली की अहमियत को उजागर करने के लिए कलिमात दर्ज थे। रिवायती लिबास में मलबूस शुरका ने झूमर और ढोल की थाप पर रक्स भी पेश किया। इस मौके पर शुरका ने कहा कि इलाकाई जबान के फरोग के लिए पंजाबी जुबान को पंजाब की मादरी जुबान के तौर पर स्कूलों में इब्तदाई तौर पर लाजमी करार दिया जाए, ताकि हमारी नई नस्ल अपनी मादरी जुबान को याद रखे।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂटर होवे तो पंजाबी साड़ी एक जुबान है तो सानू फख्र है कि असी पंजाबी बोल। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, उस्ताद, वकला और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हालिया मुल्की हालात के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला और पाकपतन में रैली निकालने पर पाबंदी लगा दी थी, जबकि साहिवाल इंतजामिया ने रैली को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की। गुजरावाला की गैर सरकारी कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब मुनक़िद हुई। तालिबात ने खूब हल्ला गिल्ला किया और खूबसूरत अंदाज में मुल्क की सकाफत को भी उजागर किया। गुजरावाला के जिना स्टेडियम में गैर सरकारी कॉलेज के ज़रिए एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें तालिबात बड़ी तादाद में शरीक थीं। स्पोर्ट्स गाला में तालिबात के दरमियान चाटी रेस, रस्सा कशी, 3 लेग समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तालिबात ने तमाम सूबों की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया। तालिबात ने इलाकाई रक्स पेश किया, जबकि फौजी बैंड और घोड़ा डांस का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। स्पोर्ट्स गाला में तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला करते हुए सेल्फियां भी बनाई। इस हवाले से तालिबात का कहना था कि तमाम तालीमी इदारों में ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद होना चाहिए। दीगर शुरका ने भी स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब को बहुत पसंद किया। उनका कहना था कि निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां तालिबात की सलाहियतों को उजागर करने में मददगार साबित होती हैं, लिहाजा ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और खबरें होंगी सुबह सिंध से। रोहिते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी में दाइश के साथ भारत भी मुलविस है। हुकूमत दहशतगर्दों का नेटवर्क का खोज लगाने की कोशिश करे। वो सेवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर खुदकुश हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है, लेकिन ज़ायरीन किसी सूरत खौफज़दा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और महकमा औकाफ मज़ारात की सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि वो मज़ारात की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करें। उनका कहना था कि दाइश का नेटवर्क तेज़ी से इराक और शाम से अफगानिस्तान की तरफ मुंतकिल हो रहा है और अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का नतीजा है। मज़ीद कहा कि दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर का वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी के बायस पेश आया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि हर सानहे के शहदा के लिए इमदाद का ऐलान किया जाता है, मगर दरगाह शानौरानी के वाक़े के बाद शहदा को अभी तक हुकूमती इमदाद नहीं मिली। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का हल्का सालेपट, जहां तालीमी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मासूम बच्चे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सखर की तहसील सालेपट, जो कि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का अपना हल्का है, लेकिन वो इस हल्के की सूरत हाल से बेखबर हैं। सबसे ज्यादा तकरीरें करने वाले खुर्शीद शाह के अपने हल्के में फैज़ मोहम्मद नामी सरकारी स्कूल मसाइल की अमाजगा है। बच्चे खुले आसमान तले फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना था कि मुतादिद बार महकमा तालीम और अपोजिशन लीडर की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई, लेकिन उन्होंने कार्रवाई तो दूर बात सुनना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो एहतजाज का दायरा कार अपनाया जाएगा। हैदराबाद में मुमकिना दहशतगर्दी के पेश नज़र सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। अदालतों के बाहर रेंजर्स एहलकारों को तैनात कर दिया गया। हैदराबाद शहर में किसी भी मुमकिना दहशतगर्दी के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात, गाड़ी खाता और सदर स्टेशन रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स तैनात हैं, जबकि मशकूक अफराद की तलाशी का सिलसिला भी जारी है। सिविल सेशन और जजेस लॉजेस के बाहर भी रेंजर्स तैनात कर दी गई है। कंदकोट सिविल और सेशन कोर्ट के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ बाजुओं पर स्यापटियां बांधकर एहतजाजी मुजाहिरा किया।
सरापा एहतजाज मुलाजिमीन का कहना था कि 2008 में भर्ती किया गया, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी तनख्वाह नहीं दी गई, जिसके बायस उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट कराची में 2011 में दरखास्त जमा कराई, मगर सिंध हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि वो बेरोजगारी के बायस शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी हुकूमत भी उनकी दादरसी नहीं कर रही। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने उनका मसला हल नहीं किया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कंदकोट में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नायाब हो गई। जिले में मौजूद वाहिद सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिले भर में गुज़िश्ता कई माह से कुत्ते के काटने की वैक्सीन नायाब हो गई है। वाहिद सिविल अस्पताल में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की शॉर्टेज का बहाना बनाकर यहां भी प्रोग्राम बंद कर दिया गया, जिसके बायस रोजाना दर्जनों मुतासिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दी गई वैक्सीन सेमी गवर्नमेंट NGOs को फराहम की जा रही है। बडानी, बख्शापुर, गौसपुर और तंगवानी के इलाकों में कुत्ते ज्यादा होने की वजह से रोजाना दर्जनों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। इन इलाकों में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर मुतासिरीन कंदकोट का रुख करते हैं और यहाँ भी वैक्सीन मुयसर न आने पर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगे दामों वैक्सीन खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। हैदराबाद में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सानिह सेवन शरीफ के शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर खुदकुश हमले के नतीजे में शहीद होने वाले अफराद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि औलिया कराम के मज़ारात पर दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होना उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्रिया है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत औलिया कराम के मज़ारात, मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत दीगर इबादतगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। उनका मजीद कहना था कि औलिया कराम ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्स दिया है। हमें चाहिए कि औलिया कराम की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम करें। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर ज़ैली कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी और PTI की हुकूमती मुसव्विदे पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार हैं। एक बार फिर से आपको खबर दें, फौजी अदालतों के मामले पर फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर ज़ैली कमेटी का इजलास हो रहा था, जो कि बेनतीजा खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती मुसव्विदे पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर कानून जाहिद अहमद की सरबराही में आज ये इजलास था ज़ैली कमेटी का, जिसमें हुकूमत ने जो फौजी अदालतों में तोसी का जो आईनी मसवदा आज पेश किया, इसमें जिसमें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI में दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी। लेकिन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अभी तक दूर नहीं हो सके। उन्होंने इस मसवदे पर एतराज़ात किए और एक बार फिर कल जो है स्पीकर की ज़ेर सदारत बड़ा इजलास होगा, जिसमें पार्लिमानी रहनुमा दोबारा बुलाए गए हैं और उसमें एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि फौजी अदालतों के तोसी के मामले पर आईनी मसवदे पर इत्फाक़ राय पैदा किया जा सके। ताहम आज के इजलास में ये इत्फाक़ राय पैदा नहीं किया जा सका। शहरी मज़ारी और दीगर जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उनका ये कहना था कि हुकूमत से कहा है कि आईनी मसवदा जो लाया जा रहा है उसमें जो तरामीम की जा रही हैं उस पर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, तब वो इस मसवदे पर इत्फाक़ करेंगे और ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो आज कमेटी में सामने आए हैं। जी बहुत शुक्रिया सरदार हमीद, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। लोरालाई में ज़ेरे तामीर यूनिवर्सिटी के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब 60 किलो बारूदी मवाद नाखाना बना दिया गया। FC ने खुफिया ज़राए से इत्तला मिलने पर ज़ेरे तामीर यूनिवर्सिटी के गिर्द इलाके को घेरे में लिया और BDS को तलब किया। BDS के अमले ने तीनों जगहों पर नस्बशुदा बारूदी मवाद नाखाना बना दिया, जिसके बाद FC ने इलाके को क्लियर कर दिया। मकामी इंतजामिया ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हब में डिप्टी कमिश्नर गुजदार ने शाहनूरानी दरगाह का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए जल्द अज जल्द CCTV कैमरे नस्ब कराने की हिदायत की।
डिप्टी कमिश्नर गुलजार सुहेलुर रहमान बलोच ने दरगाह बिलावल शाह नूरानी का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी का जायजा लिया और चेक पोस्टों पर चेकिंग सख्त करके एक हफ्ते के अंदर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर सुहेलुर रहमान बलोच ने दरगाह के मतवलियों से भी मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि दरगाह शाह नूरानी पर धमाके के बाद सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में दरगाह के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर 8 चेक पोस्टें कायम करके 50 रजाकार और 50 लेवीज एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि दरगाह में 40 सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। कोयटा में जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाबहक हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। फायरिंग का वाकया शहर के ऐन वस्त जिना रोड पर पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग से एक शख्स की जान ले ली। वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने मुसल्लह शख्स का ताक़ुब किया, ताहम फायरिंग करने वाला शख्स फरार हो गया। वाक़े के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाए बकुआ को घेरे में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। डेरा मुराद जमाली में दौरान ऑपरेशन मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एएसआई मोहम्मद मुराद भंगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। डेरा मुराद जमाली में ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से एएसआई शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर दिया है। दूसरी जानिब शदीद जख्मी होने वाले एएसआई को डेरा मुराद जमाली के अस्पताल में इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी के बाद तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली मीर इजहार खान खोसा का कहना है कि अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी में अगर मर्दमशुमारी हुई तो बलोच अक्सरियत को नुकसान होगा। जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर इजहार खान खोसा का कहना था कि सेवन शरीफ, लाहौर और 4 सदा धमाकों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि हमें अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की सजा मिल रही है। अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी में अगर मर्दमशुमारी की गई तो बलोच अक्सरियत को नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन के साथ साथ तमाम मुहाजिरीन को निकाल कर मर्दमशुमारी की जाए। इस मौके पर मीर इजहार खान खोसा का ये भी कहना था कि इलाके में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जिससे तालीमी इदारे, सेहत के मराकज़ और सड़कें तामीर की जाएंगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ठेकेदार या अफसरान ने काम में कोताही बरती तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलोच कौम परस्त रहनुमा अब्दुल रऊफ खान सासोली का कहना है कि गैर मुल्कियों की मौजूदगी में मर्दमशुमारी न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक होगी। महमूद खान अचकजई ने बलोचों के खिलाफ जो मुसव्विदा तैयार किया है उसे शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। बलोच कौम परस्त रहनुमा अब्दुल रऊफ खान सासोली ने हब के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी में मर्दमशुमारी न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। इदारों की नहली की वजह से अफगान मुहाजिरीन ने न सिर्फ शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट हासिल किए बल्कि वो अहम सरकारी ओहदों पर भी फाइज है। उनका कहना था कि अफगान मुहाजिरीन को कैंपों तक महदूद न रखने से मुल्क में मनशियात, क्लाशनकोव कल्चर और दहशतगर्दी फैली है। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई मियाँ साहब के लाडले हैं। वो अपना वोट बैंक बढ़ाने की खातिर अफगान मुहाजिरीन को मर्दमशुमारी में शामिल करने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। ताजुब की बात यह है कि मुहाजिरीन के लिए अलग सूबे का भी मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अफगान मुहाजिरीन के इनखला को यकीनी बनाया जाए और उनके वापस जाने तक मर्दमशुमारी को मौखर किया जाए। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। पाक फजाइया ने खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों की ईंट से ईंट बजा दी। राजगाल में फजाई कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। मुतादिद ठिकाने भी मलयामेट कर दिए गए। के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौजाइया ने खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर
कार्रवाई की। शाहीन राजगाल के इलाके में मुल्क दुश्मनों की कमीन गाहों पर टूट पड़े। शदीद बमबारी के नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि मुतादिद ठिकानों को मिट्टी का ढेर बना दिया गया। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी और 7 शरीफ धमाके के ताने बाने अफगानिस्तान के साथ मिलने के बाद सरहद के करीब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक सैकड़ों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। बमबारी के दौरान दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। 4 सद्दा आतंकी कोर्ट्स में खुदकुश धमाके के बाद मानसहरा एलीट फोर्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानसहरा और डीसी ऑफिस में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकें की गईं। फर्जी ऑपरेशन में दहशतगर्दों से मुकाबले की मशक की गई। इस दौरान दहशतगर्दों की जानिब से किसी भी ऑफिसर या किसी भी सिविल शख्स को यरगमाल बनाने के बाद रिहा कराने की मशक की गई। इस मौके पर अफसरान का कहना था कि मुल्क में जारी दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क के अवाम को खौफजदा कर दिया है। पुलिस के जवान इन हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी दहशतगर्द को इसके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अभी आपको बताएं कि चित्राल में मसालहती काउंसिल के अरकान के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में DRC के 21 अरकान को तरबियत दी गई। चित्राल में सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मसालहती काउंसिल के अरकान के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में DRC के 21 अरकान को बुनियादी कवानीन और तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल काउंसिल के मौजू पर मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर साबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने शुरका को DRC की कानूनी हैसियत और लोगों के तनाज़ात कानूनी दायरे के अंदर हल करने के बारे में मुफस्सिल लेक्चर्स दिए। तरबियत पाने वाले अरकान का कहना था कि मसालहती काउंसिल की वजह से सस्ता इंसाफ मुयसर होने के साथ साथ उनको शरई हक भी मिलेगा। उनके छोटे छोटे तनाज़ात थाना कचहरी के बगैर भी DRC के जरिए हल हो जाएंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरका में असनाद तकसीम की गईं। और अब खबरें शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर से। रामलाकोट कमांडेंट CMH ब्रिगेडियर वसीम अहमद का कहना है कि सिविल और मिलिट्री ज्वाइंट विंग से अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शेख ज़ैद अल नयान अस्पताल में सेहत की जदीद तरीन सहूलियात मुहैया की गई हैं। शेख ज़ैद अल नयान अस्पताल में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कमिश्नर पहुंच डिवीजन अताउल्ला अता, डिप्टी कमिश्नर ताहिर महमूद, सेकंड ऑफिसर, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। इस मौके पर कमांडेंट का कहना था कि हमारा मकसद अवाम को सेहत की जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी है, जिसके लिए आर्मी और सिविल डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स शबाना रोज काम कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क भर की तरह यहाँ भी जदीद मशीनरी और तजर्बाकार डॉक्टर्स मौजूद हैं। अस्पताल में मजीद 100 बिस्तर्स और डायलिसिस मशीनों के हसूल के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी है। उन्होंने अवाम से अस्पताल इंतजामिया से ताउन करने की अपील की। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से भी कहा कि कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दें ताकि अवामी खिदमत को मजीद फ़ाल बनाते हुए 5 अजला के अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम की जा सकें। बादज़ा उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान को मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों का भी दौरा करवाया। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में शहदाए लंदन हनीफ शहीद और बशारत शहीद का 44वां यौम शहादत मनाया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शहदाए लंदन के मज़ारात पर दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के कायदीन, ताजिरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने सलामी पेश की। शहदा ने फरवरी 1973 को पाक आर्मी की बाजियाबी के लिए खिलौना पिस्तौल से लंदन में भारतीय सिफारत खाने के अमले को यरगमाल बना लिया था, जिस पर उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया। तकरीब के शुरका ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया और इस अहद की तजदीद की कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। कराची से खबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।